Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? Today we are going to study the subject of economy of Pakistan, in which with new topic I am here Anamfida. We are going to study the topics commercial bank, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज या फिर इनको इंस्टीट्यूशंस भी कह सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स and investment bank and interest free banking. These topics we will recover today. First of all, I will describe you about the commercial banking. All of you know that what is the mean of bank, what is the task of the bank, and why the banks are necessary for every country, or why for people they have the compulsory stage. For example, if we take our money in our pockets at our homes, obviously that money will be not at their place, and that will be thefted by anyone. So the banks are the necessary, and for example we will store our money at our homes, but we will not make use of that money, we will not make invest of that money, and money of everybody will be at their homes and will be saved in their bedrooms, in their cabinets and etc. If we will not invest or give money to any other person for doing the business, it will be not beneficial. For example, we will give that money to any other person for doing any business. It will be not beneficial for us, because that is not secured. We don't know that a person that is borrowing from us will make use of money in which way. We don't know, and we are not sure about the usage of that money. So all of these kinds of and issues are solved by the banks. Banks are the necessary and compulsory part of everybody's life. For example, we will discuss about the central bank. Central bank is a bank that is only one in every country. Every country has one there, central bank, federal bank. That is the in our Pakistan is the State Bank of Pakistan. In America is the Reserve Bank of America, and in India is the Reserve Bank of India, and etc. Every country has different name of their central bank, but all of these are the only one central bank in every country. Okay, the other banks that are small at the small levels and under the central bank, those banks are called the commercial banks. All commercial banks are under the central bank and worked under the central bank, and by advising the central bank. We will see the commercial bank. What is the commercial bank? There are two types of commercial bank: scheduled bank and non-scheduled bank. Okay, what is the scheduled mean? Scheduled mean scheduled, planned, and that have been listed in a specific way. And scheduled banks are the in the second scheduled, it is called, scheduled banks are called the second scheduled of Reserve Bank of India, RBI यानी कि Reserve Bank of India. All the banks that are under the act, second act of second schedule of Reserve Bank of India. So it means that this is the talk about the before making and independence of the Pakistan, because this act was in 1934. In 1934, Reserve Bank of India has scheduled the some banks, and all the banks that are scheduled in the act of 1934, those all banks are called the scheduled banks. And these have the three types. One is the public bank, other is the private bank, and other is foreign bank. Okay, as far as the public bank is for example any government bank type, for example a national bank,
national and for example HBL Habib banks etc. National Bank Limited, that is the under the government and is public bank. If we describe about the private banks, for example Allied Bank. These are the common banks around of us. We have seen these Allied Bank, and other is for example Al Falah Bank, and other is the United Bank, that is called the UBL, and other is the Habib Bank, that is called the HBL, etc. These are under the private bankings, like these are the public banks, and other is the foreign bank. What do you mean by the foreign banks? क्या ये वो वाले फॉरेन बैंक जो बाहर के कंट्रीज वाले हैं वो हमारे अंदर काउंट होंगे? नॉट, दीज आर द फॉरेन बैंक्स. फॉर एग्जांपल इस तरह का बैंक जो सारे कंट्रीज को कवर कर सके, जिसकी एग्जांपल मैंने आई होप सो पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, दैट इज़ द वर्ल्ड बैंक या फिर IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर फंड्स को मॉनिटर करता है, जिसको हम IMF कहते हैं, या फिर हम फॉरेन बैंक में बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की. WB, that means World Bank. World Bank is the only one bank in the whole economy, is in the whole world economy. That is the World Bank in the New York of America. It is situated in the America, in New York City, World Bank, and many movies are on the World Bank. For example, we have seen that in any movie, हमने जैसे देखा कि चोर आ रहे होते हैं, वो थेफ्ट करना चाह रहे हैं. मैंने इस तरह की एक मूवी देखी. आप लोगों ने अगर डब्ड में मूवीज़ देखी हैं तो वर्ल्ड बैंक पर ज़रूर देखी होगी. वो ब्लू सी मिरर वाली बिल्डिंग, शीशे से ऐसे लगे हुए, और उसके ऊपर चढ़े होते हैं जैसे रस्सियों वगैरह से, इस तरह से जी वहाँ से चोरी हो रही है, बैंक को लूटा जा रहा है. इस तरह की मूवीज़ और हैं काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड बैंक पर. तो मैं उसको देख चुकी हूँ. आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखी होगी. अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की वो मूवी है वर्ल्ड बैंक के हवाले से, और इस तरह की मज़ीद भी. ओके, ये वर्ल्ड बैंक, ये सारे अंडर शेड्यूल्ड बैंक्स आ गए. ओके, द अदर इज़ द नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स. Non-scheduled banks are the all those banks that are not scheduled, not have any final planned. Final plan means that is the common between these all of the bank types. No any type of these banks. These are the non-scheduled banks, and non-scheduled, for example, these have the reserves less than 5 lakh. यानी कि इनके अंदर जो अमाउंट रिजर्व कर दी जाती है वो लेस देन 5 लाख होती है. ये आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि 5 लाख तो कुछ भी नहीं है बैंक के लिए. करोड़ों, मिलियन, बिलियन की ये तो बात कर रहा होता है. तो ये नॉट शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, और शेड्यूल्ड बैंक्स क्या करते हैं? मोर देन 5 लाख एंड go on, so or crore etc. Okay, the main task is that for example, what is the examples of the commercial bank? If we say that which of the banks are coming under the examples of the commercial bank, we simply say that, simply not discuss about any types and other things, say that commercial banks are the Allied Bank, Al Falah Bank, United Bank, HBL, Ascripa Bank, Ascri Bank, and etc. These all of the under of the commercial banks. Types of the commercial banks. Okay, if we discuss the main important bank, which is the main important bank and which is the largest banking system, financially largest and largest banking system, we will discuss that. That is the HBL. HBL यानी कि हबीब बैंक is the largest commercial bank. Habib Bank Limited.
ऑफ पाकिस्तान, यानी कि HBL is the largest Pakistani bank that has largest financial system and moves their monies and at the largest level. This is the largest bank. Okay, if we see about the what is the function of the commercial banks, कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन क्या है, रोल क्या है, और अगर हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं फॉर एग्जांपल फंक्शंस में इसकी जो मेन थिंग आ जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉमन पर्पस, common aim, common function, common role and common goal of every bank. If that is the any type of commercial bank, every bank is the main purpose is the deposit money and invest the money, deposit and lend. लेंड मीन दैट लेंड करना यानी कि देना, लोन्स दे देना, उसको लेंड कर देना, इन्वेस्ट कर देना. ओके, डिपॉजिट द मनी एंड लेंड द मनी. ओके, डिपॉजिट मीन कोई भी आप बैंक में आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन द बैंक्स. डिपॉजिट में कोई आरजी अरसा के लिए यानी कि मुख्तसर अरसे के लिए भी जमा करवा सकता है. अगर हम इसमें बात करते हैं इसकी के करंट अकाउंट की, करंट अकाउंट में आप लोग अपने 50,000 तक करवा सकते हैं, या फिर डिफरेंट ये अकाउंट्स बने हुए होते हैं, उसमें आप स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है, अमाउंट थोड़ा स्पेसिफिक है लेकिन स्पेसिफिक अरसे के लिए जमा नहीं करवा सकते. जब मर्जी आप वहाँ से उसको लैंड करवा लें, जब मर्जी आप उसको क्रेडिट करा लें, ये आपकी अपनी मर्जी होती है. लेकिन अगर हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट की, तो सेविंग अकाउंट में एक स्पेसिफिक अमाउंट को स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट कर लिया जाता है और फिर उसको आगे लोन में भी इस्तेमाल कर लिया जाता है. देखना हमारी तरफ से एक चीज़, एक मतलब मनी की जो अमाउंट है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो सबमिट हो गई है. अब हम अगर 1 साल के लिए उसको करवा चुके हैं तो साल बाद ही हम पूछ सकते हैं, उससे पहले नहीं पूछ सकते. तो वो जो बैंक होता है उसी को उठाकर आगे फिर लोन्स और इस तरह से कर्जे वगैरह देना स्टार्ट कर देता है. ये बहुत लार्जेस्ट लेवल पर पाकिस्तान में बैंकिंग फील्ड चल रही है और इसके बगैर तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा है कोई भी काम आजकल हर बंदे के लिए. इसमें डिपॉजिट मनी में बात कर लें, ये बहुत ज़्यादा यूँ कह लें कि बेनिफिट है बैंकिंग का, कि हम अपने पैसों को ले जाते हैं और उनके पास जमा करवा देते हैं बैंक के पास. कल को फिर वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने बिजनेस करना होता है. सबसे स्टार्ट में लेक्चर की मैं आपसे यही डिस्कस कर रही थी कि हमारे पास सेव नहीं था जब तक बैंकिंग सिस्टम नहीं था, कि हम लोग वो पैसे अपने चले ठीक है हमने रखे हुए किसी को दे भी दिए बिजनेस के लिए, फिर हमें ये श्योरिटी नहीं होती थी कि वो आगे किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है या किसके लिए नहीं यूज़ कर रहा है. तो जो बैंक सिस्टम है it has solved all our different issues related to our money. तो हमारी मनी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं इसने सॉल्व कर दिए हैं. और बैंक में हम इसकी बात कर सकते हैं कि जो भी अब लोन लेने आता है बैंक से, तो वो लोन लेकर जाता है तो वो अपना पर्पज़ बताता है कि किस पर्पज़ के लिए उसने लेना है, कौन सी स्कीम है. फॉर एग्जांपल ये नवाज शरीफ की ट्रैक्टर वाली स्कीम भी चली थी कि बैंक से लोन दिए जा रहे हैं ट्रैक्टर लें या फिर एग्रीकल्चर के हवाले से, इस तरह की कि एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए. तो बैंक को इस चीज़ की श्योरिटी होती है और वो मनी डिपॉजिटर को भी श्योरिटी दे रहा होता है कि ये इस तरह से है, मतलब आपकी जो मनी है वो सही वे पर यूज़ हो रही है. ओके, यहाँ पर जो डिपॉजिट मनी हो जाती है उसको बाद में लेंड कर दिया जाता है. ये तो इसका हो गया मेन फंक्शन और पर्पज़. इसके अलावा कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है बैंक? बिलिंग, हम अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल एंड एनीथिंग एल्स दिस बिल्स वी विल परफॉर्म एट द एंड डिपॉजिट इन द बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स और ETC. अब वो बैंक वालों ने अपनी डिवाइसेस दी हुई हैं मुख्तलिफ शॉपकीपर्स को जो कि ये वाला काम भी परफॉर्म कर देते हैं. अच्छा, इसके अलावा बैंक का क्या काम है? कैश ड्रॉ कराना. कैश ड्रॉ हम कैसे करवाते हैं? ATM के थ्रू.
बाय यूजिंग एटीएम। और बैंक का ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सा फंक्शन है कि हम लोग कहीं किसी भी स्टोर पर जाते हैं, किसी भी मॉल पे चले जाते हैं या जनरल स्टोर पे, तो वहाँ पर इस चीज़ की फैसिलिटी भी दी हुई है कि हम अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर हम अपनी पेमेंट कर देते हैं। बैंक ये भी बैंक का एक है कि शॉपिंग में भी है, हेल्पफुल है बैंक, ये भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और ये इन्वेस्ट भी कर रहे हैं बैंक ना, अपने तौर पे भी इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इनकी एक ना स्पेशल फील्ड होती है जिसका नाम दिया जाता है कि ना बिजनेस डेवलपर। एक सीट रखी जाती है, बिजनेस को डेवलप कर लिया जाता है। बिजनेस डेवलपर एक पर्सन होता है, यानी कि जॉब होल्डर होता है। ये आप लोगों ने इसका ना पोर्शन देखा होगा कि ना बिजनेस डेवलपर की जॉब है, ऑपरेशन की है, फील्ड वर्क की है। फील्ड वर्क वही वाला है, यानी कि जैसे शॉप्स में जाकर फील्ड वर्क करना होता है, उनको डिवाइसेस पकड़ाना, कि ये हमारा काम बैंक का थोड़ा आपके थ्रू हो जाएगा। और बिजनेस डेवलपर की बात करते हैं तो ये ऐसा पर्सन होता है जो कि आपके बिजनेस को डेवलप करता है थ्रू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करवाता है, लोगों को बुलाता है कि आए इंश्योरेंस कर लें, आए फ़लाँ पॉलिसी कर लें, फ़लाँ कर लें, तो उसके थ्रू ये काम परफॉर्म करता है। अच्छा, बस यहाँ तक ये थोड़े से आप इसके फंक्शन भी देख लीजिएगा शॉर्टली सा। ये हमने कमर्शियल बैंक को देखा है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन बैंक। ये तो बात थी ना बैंकिंग की, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की। नॉन बैंक आपने ये चीज़ देखी होगी, जेन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सम अदर फील्ड्स दैट आर द इंश्योरेंस पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड्स, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्या ये बैंक्स हैं? नो, दीज आर द नॉट बैंक्स बट लाइक बैंक्स। ये बैंक की तरह के होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इंस्टीट्यूशन की जगह इंटरमीडियरीज का वर्ड भी आ सकता है। इंटरमीडिएट से क्या समझ आ रही है? आ रहा है ना कि इंटरमीडिएट, इंटरमीडियरीज, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो होते हैं डिपॉजिटर और बोरोवर के दरमियान, यानी कि बोरोवर लेंडर के दरमियान में होते हैं, इंटरमीडिएट रोल अदा करते हैं और ये सेंट्रल होते हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ की, ये भी नॉन बैंकिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज़ आप सबके सामने है, इनकी कंपनीज़ की जो भी वर्किंग्स हैं इंश्योरेंस में, कि इंश्योरेंस में बीमा पॉलिसी करवा लें या फिर इसमें डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है। गाड़ी की पॉलिसी, हम सफ़र पॉलिसी, इस तरह की डिफरेंट पॉलिसीज़ आई हैं। और इंश्योरेंस को लेकर अगर हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जुबली तकाफुल मुल्तान में जो हमारे इर्द गिर्द हैं, दाऊद तकाफुल एंड EFU है, और इस तरह के डिफरेंट टाइप के हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जिन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। और इससे क्या बेनिफिट होता है कि हम लोग अपनी फॉर एग्जांपल गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हैं, कल को एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी गई, तो वहाँ से हमें पॉलिसी के तहत होता होगा कुछ भी कि न्यू गाड़ी मिलेगी या फिर उसकी पेमेंट मिलेगी, इस तरह से गाड़ी की हो गई पॉलिसी। और अगर हमने ये पॉलिसी करवा ली कि अपनी बीमा पॉलिसी करवा ली कि अगर मैं 70 साल तक, या फिर यूँ लगा लें कि इसमें एक एज की लिमिट होती है कि बीमा पॉलिसी, ऐसा नहीं है कि हमारे जो ओल्ड एज है, मरने वाले हैं, उनको उठा के हम उनकी बीमा पॉलिसी करवा दें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक एज की लिमिट होती है और उसके दौरान ये होता है कि अगर हमारी जो बीमा पॉलिसी है उसके दौरान अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, नौज़ुबिल्लाह किसी की डेथ हो जाती है तो उसको फिर जो उसके तहत पॉलिसी में होता है कि इसको इतने लैक्स मिलेंगे, 10 लाख मिलेगा, इतना मिलेगा, उसकी फैमिली को वो दे दिया जाता है। इस तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, ये इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं जो अपना रोल इस तरह से अदा करती हैं। और पॉलिसी करवाने के लिए ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पेमेंट दे देते हैं, वो मंथली पेमेंट कोई होती है उनकी, तो इस तरह से पेमेंट करनी होती है। ये होता है कि साल के एंड पे जब, या फिर 10 सालों के एंड पे जितनी भी पॉलिसी होती है, जब आप अपनी पेमेंट को वापस लेते हैं तो वो मल्टीपल हो जाती है और
कुछ ज़्यादा हो जाती है, इसका ये होता है। और इसके बाद सेकंड अगर हम बात करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो वो है म्यूचुअल फंड। व्हाट इज़ द म्यूचुअल फंड्स? ये म्यूचुअल फंड कोई फंड नहीं है, ये एक यानी कि इंस्टीट्यूशन का नेम है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। यानी कि म्यूचुअल फंड्स ये क्या करते हैं कि सबसे इन्वेस्टर जितने भी होते हैं ना, इन्वेस्टर्स, कौन से इन्वेस्टर्स? स्टॉक और बॉन्ड्स की बात करें हम म्यूचुअल फंड में, बॉन्ड्स स्टॉक के जितने भी इन्वेस्टर होते हैं उन सब से पैसे कलेक्ट कर लेते हैं, मनी कलेक्ट कर लेते हैं, और ये सेंटर का में अपना रोल अदा करते हैं कि वो एक साथ फिर जब इधर से आ गई मनी, इधर से आ गई, इन सब की कलेक्ट करके फिर वो एक साथ ही बॉन्ड और स्टॉक को खुद परचेज करते हैं। जैसा कि ये म्यूचुअल फंड है कि म्यूचुअली फंड कर दिया, इधर से किसी एक रिचर मैन ने दे दिया, इधर से किसी और लैंडलॉर्ड ने दे दिया, तो ये लोग इकट्ठा करके ये जो होता है इंस्टीट्यूशन उनके फंड्स को इकट्ठा करता है और फिर जो है उसको इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट कहाँ करेगा? बॉन्ड्स और स्टॉक्स पर। एंड द थर्ड टाइप इज़ द इन्वेस्टमेंट बैंक। अगर हम इन्वेस्टमेंट बैंक पर बात करते हैं, ये सिर्फ बॉन्ड, स्टॉक, शेयर्स वगैरह, सिक्योरिटीज़ वगैरह में इन्वेस्ट करता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट बैंक है ये किसी भी जगह पर इन्वेस्ट कर सकता है, किसी भी चीज़ में। ये इन्वेस्टमेंट बैंक ये आप ले लें कि एडवाइज़र है। एडवाइज़र किस तरह से है? ये एडवाइस करता है अपना जो इसका कस्टमर होता है उसको कि आप किस जगह पर इन्वेस्ट करें, किस बिजनेस में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट बैंक जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं कभी इंडस्ट्रीज़ के साथ और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, या फिर जो भी होते हैं इनकी कंपनीज़ या फिर फील्ड्स होते हैं उनके साथ ये एक एडवाइज़र का काम करता है इन्वेस्टमेंट बैंक। यानी कि लोगों से उनकी पेमेंट्स आ गई हैं, यानी कि डिपॉजिट करवा दिया है, तो वो जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको इन्वेस्ट कैसे करो, कहाँ पे करो, बस ये एक एडवाइज़र का काम करता है। लोग हमारे पास आए हैं, हम उनको एडवाइस करेंगे कि आप ये अपना यहाँ पर डिपॉजिट करें, इतना एक यहाँ पर इन्वेस्ट कर दें, फ़लाँ बिजनेस से आपको बेनिफिट हो सकता है फ़लाँ से। तो ये अपना इन्वेस्टमेंट बैंक जो है एडवाइज़र का रोल करता है। इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इसका रोल होता है। इसकी एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो एक इन्वेस्टमेंट बैंक की एग्जांपल आती है क्रेडिट स्विस। ये इसका है नॉन फाइनेंशियल बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, पैसों पे ये काम कर रहे हैं, लेकिन नॉन बैंकिंग है। और उसके साथ बैंक ऑफ अमेरिका, एक अमेरिका में इस तरह का एक बैंक है जिसका नाम है बैंक ऑफ अमेरिका। ओके और इस तरह से फॉर एग्जांपल ETC, इस तरह के इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं। और सबसे एंड पे लास्ट पे हमारे पास है इंटरेस्ट फ्री बैंक। इंटरेस्ट फ्री बैंक क्या होते हैं? आपको नेम से क्या लग रहा है कि इंटरेस्ट फ्री बैंक्स, what will be the means of the interest free bank and what will be the task of the interest free bank? इंटरेस्ट फ्री बैंक, देखो इसका नाम तो बैंक के साथ लगा दिया गया है, लेकिन नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, ये बात आप याद रखिएगा। इंटरेस्ट फ्री बैंक ये बैंक है। बैंक्स जो हमारे पास कमर्शियल बैंक्स आते हैं वो अलाइड बैंक, HPL, ये वाले सारे होते हैं, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने अपने नाम रखे होते हैं। फॉर एग्जांपल इधर ही अगर हम मुल्तान की ही एग्जांपल में बात करें तो जो जॉब्स लगवा रहे हैं, कंसल्टेंसी जॉब्स में भी एडवाइस कर रहे हैं ना, उन्होंने नाम रखा हुआ मुल्तान बैंक। आपने इस तरह का एक नेम सुना होगा कि मुल्तान बैंक। तो इसी तरह से ये सारी एग्जांपल्स आती हैं। ओके, ये इंटरेस्ट फ्री बैंक क्या है कि इसमें जो बोरोवर है उसे मनी मिल जाती है, बोरोवर गेट्स मनी विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट इंटरेस्ट। ये बैंक जो होते हैं अपनी मनी को इधर इनको दे देंगे, बोरोवर को इंटरेस्ट के बगैर दे देंगे, और यानी कि इस पर कोई सूद नहीं होगा। लेकिन अगर बोरोवर चाहे, उसने अपना बिजनेस किया, उसे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, और उस प्रॉफिट के बाद अगर बोरोवर ये चाहता है कि वो उसकी जो मनी है उसकी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो, वो थोड़ा बहुत उस मनी में से अपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देना चाहे,
उस मनी में से, तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट दे सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा पेमेंट इज़ नॉट कंपल्सरी एज ए इंटरेस्ट रेट। इसमें जो है इंटरेस्ट रेट के तौर पर जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो कंपल्सरी नहीं है। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग है ये। ऑल दीज टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड टुडे। ओके, आज का हमारा टॉपिक इसके साथ ही ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।